जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको पता चलेगा कि जो लोग हमसे मिलने आते हैं एमएस ट्रेडर से फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए निःशुल्क ज्ञान लेने प्लास्टिक स्क्रैप की, उनके साथ हमारा व्यवहार किस तरह होता है और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम उन्हें देते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें भी आपको कई जानकारियां मिली थी और इस वीडियो में भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। कुछ बंदों को 15 मिनट लगता है सारे प्रोसेस समझने के लिए और कुछ बंदे 8-8 घंटे लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। एक बंदा जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, वो भविष्य में म्यूजिशियन बनना चाहता है, पर वो करना चाहता है स्क्रैप का बिजनेस। और इस बंदे को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन होना बुरी बात नहीं है, पर कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए कभी कभी एमएस ट्रेडर को 6 से 8 घंटे लगते हैं और इस बंदे के पीछे वही 6 से 8 घंटे की मेहनत हमारी लगी। तो वीडियो में आपको अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज नजर आएगा क्योंकि वो बंदे को तेलुगु आती थी, खान साहब को हिंदी आती थी, और अब बीच का मार्ग, जो बीच का रास्ता था वो था इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मुझे बोलना पड़ा। तो आपको ये वीडियो फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश में नजर आएगा, उसके बाद आपको मराठी में नजर आएगा और उसके बाद हिंदी में। तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। establish and branding industry for myself to succeed as in businessman. Actually, doctor is my profession. And You are practicing right now? Yes. Practicing right now, sir. From Tirupati, Andhra Pradesh. Doctor is my profession, and what is this business is this random business are going to be my business, and passion is the business. Buddy, are you sure? Are you aware about that you have taken the hypothetical oath, right? Yes. And you have to give your 24/7 to your duty. And that is not... No. वो शेड ये ठंडा हो जाएगा। काका एक घेऊन जावा. Only I'm looking like this picture, but in my mind there is an sorry, what it was. I'm a workaholic. I understand. See, I am a workaholic. I never... I had a passion of music. Oh, that's wonderful. I'm learning music too, Oh, that's wonderful. and I have to be musician finally. Oh, that's wonderful. Apart of all these, I have to be musician finally at the end of the day. I don't care about my passion, and I don't care about my business. Actually, I only care about my end of the day. At last, actually, not present. At last, I only care about my passion. Because based on family situations, because they are opposing me from first day itself in passionate life. So I came to studies life, and they are actually they want to be a successful businessman. So that's why I choose these business solely because to be an independent businessman, I need to be an independent businessman. So that's why. Again, you're jumbling multiple things. Yeah. The reason why I'm asking you is, see, being fair and honest, I never judge anyone. Yeah, brother. I never judge anyone. Yeah, brother. I don't mind actually because you are saying the truth. I never judge anyone. It does not matter whether you want to be a Danish musician, you are practicing as a doctor, or you want to build an empire related to granule business. But the reason why I'm saying is, do not invest in granule business because it will be really tough and hard for you, and that will live at a time. You will mark my word that Monish Bhaiya, what you said, brother, was absolutely right. Granule business on initial stages without experience is a dead zone. Yes. It's 100% dead zone. Are you heard about mercy killing? I don't have knowledge. Actually, I don't have 0% knowledge also. That's the only Sorry, reason. knowledge not. I don't have any 0% experience. But I have only 1% or 2% knowledge in this. Like how to where to buy the scrap. And I don't have knowledge in selling of this product. I do have about missionary knowledge. Yes. How about if I show you a small scale investment business where you can That's the point. where It's you like could a small scale. where you could invest low, where you can invest very little and you can earn profit up to mark. Then won't that be better for you? Think about it. I need to grow by step because The reason why I'm asking you is, I'll give you a fine example. Do you see this tea shop? Okay. Now this man, he's the owner. Now he established his tea shop very well. He very well knows that whatever would happen, my market is quite stable, right? Now in future, what he's planning is, there you could see available space. Yeah. On that available space, he's planning for snacks items like idli, dosa, mendu vada, and each and everything. Okay. Now he established those business, but he have his base very firm and strong.
the tea business base is very firm and strong, right? Now, if God forbidden he get lost in that business, and God forbidden that business does not succeed, he has backup. Absolutely correct. What about your granules? If God forbidden does not succeed, what backup do you have? Okay, that's a good question. Actually, for that, we don't have any backup, frankly. Everything as per protocol. I'm not sure. Actually, that is not sure. I have to manage. But how could you? As you could see in your past I experience. want to manage. I want Yes, to manage. you want to. There, I don't have any another option apart from this. So that's why. Sai, mark my word. Yes. There is a difference between you want to and you need to. See, one is your desire and one is your need. You understand. You need to understand your need. I'll give you a fine quote here. Need of a beggar can also be fulfilled, but desire of a king will be remained. You need to understand I want that. to decide to be a successful person. But how Rather that than- will be possible? Rather than a successful, profitable businessman. You know my father? Yeah? On that scooter, the white scooter which you were pillion. I Huh? had really shocked. He almost traveled 700 kilometers to set up a deal. Can you do that? So that's why I came Ah. from my place to here to know only some about knowledge. I'll give you all the knowledge, but make sure you do not interrupt and listen to me very carefully. After our session is over, you can ask your questions related to that query. Yeah. Huh? Actually, after this, I plan to go Bangalore and as well as Chennai. Complete Dana setup, complete. Yeah. The Six mixing machinery. machines, Six the mix. machinery. Okay. If you don't mind, will we go for hotel or some private place? Actually, You feel uncomfortable, yeah? can, Do you feel uncomfortable, yeah? yeah, like that. अच्छा ठीक है. Rather than in a busy area, I had only The peace in reason some. I'll consider your request. There is Yeah. here you are being confused. The reason why I'm asking you to trade is because you will To gain gain experience. You will gain experience. You will understand the market. Yeah. If you do not understand the market, I'll tell you one thing: is Yeah, you're a doctor. yeah. You're a doctor, right? Yeah. But same does not go with your friend. Your friend cannot be a doctor, right? Yes. You are, but he is not. There is a reason, because you have more potential, you have experience, you have knowledge. Same goes with the business. If your friend is working with a granule plant, that does not mean the same to you, because he might be having experience, he might be having his father working with the process, or he might have worked with multiple companies, and that's the reason why he is standing. And for you, you have to start with the base. And for starting with the base, you need to do the trade. The trade will give you a fair enough idea that how things works, what are the market rates. And I'm not asking you to trade with danas or the granules, but I'm asking you, you trade with the scrap. You have multiple industrial state in your area, the place where you reside. Yes. In that industrial state, there are multiple scraps. You visit those companies, you visit the purchase manager, the purchase officer, or the purchase department. Ask them to show you the available scrap. Get that scrap. If you need an expertise, share the photos and videos with Khan Sahib. Sir, this scrap I found. If you cannot speak English and neither he could speak English or you cannot speak Hindi, what you could do is you could simply type. He reads very well. You tell him that these are the scraps. Let me know the rate. Khan Sahib will tell you this is the purchase rate and this will be the maximum selling rate. What you could do is you could ask the manager, sir, by tomorrow I'll help you with the quotation. I'll discuss this with my team and I'll let you know by tomorrow what is the base rate I could offer. And by that time, anyone who is available next to you, even the guy, the friend of yours who works with the granule plant, show him this scrap is available. Are you interested in this scrap? If the company is asking for 14 rupees, quote in 16 rupees. Now on a kilo you will earn 2 rupees. Now if the total weight goes 5 ton, that comes to 5,000 kgs. You are earning 10,000 rupees by doing nothing without investing a single penny. Yeah, actually, right? it was a good By thing. doing that, what you will learn? You will earn experience. If you, in case, if you do not earn a single penny with that training, you will get the experience. By down the line, by 6, 7, 8, 1 year, see, this business is not running, neither you want to die. We do not know when we are going to die, but we have hope that yes, we will see tomorrow, right? So on that basis, on the faith of leap, what you could do is you could run down your experience for up to 6 to 8 months till the time your heart says, from the bottom of your heart, you get the affirmation saying
that brother, this is the time where you have to invest. Now then start with the basic level. What is the basic level? First you were trading, now you have to be the purchaser, you have to be the buyer. You will purchase the scrap from that company, you will process that scrap in your company, and then you will sell. Instead of 2 rupees, you will get a margin of 5 to 7 rupees. By that time you will stand firmly. Now as you want to be a singer, you said you're a musician, you're a passionate musician, right? On initial basis, if you got an opportunity to work as a chorus, will you do that? Definitely. Why? I'm asking you why. Why not the lead singer? Why chorus? Actually, any one of opportunity I don't want to lose on that. Exactly my point. Now here you have the opportunity to start with the base level business. Why aren't you grabbing it? Okay. Yeah, fine. Huh? Actually, So- I think that one also, bro. Now here you said you have 50 lakh rupees sanction. Yeah. Now to start that base level business, you would actually require 7 lakh rupees. Now think about it. I'm asking you multiple questions, and this is the way I will explain. Once I'm done, whatever questions you have, shoot it. Actually, here one thing is Go that ahead. if I establish now, up to a nice. Anyhow, you're willing to Bro. establish it. Does not matter Yeah. whether you're gonna profit or loss. Yeah. You want to establish it. No, bro, not like that. Actually, I need to run successfully. Buddy, that's the only reason. There is no shortcut for success. Yes, That's what I'm yes. about to tell you. Actually, from 1 year itself, I'm gathering knowledge how to establish the business. Now tell me one thing is, you came here for information. I would give you the information and then you can go by yourself, right? Yes, bro. But the reason why I am struggling. Yeah, bro. Yes, bro. You are saying that I should have the struggles which I Exactly. have faced. You do I do not have to. you be. have. That's why you're saying. Yes, you I'm have. getting that point. You have done. What's your degree? It is BHMS or MBBS? Formally. Formally. Okay. Yeah. Now, as you have the capability to prescribe someone a drug, Yeah, right? You have the capability. Yeah. Now you are completely aware of that. Once the fetus which grows, which comes to the form of baby, and after that it grows slowly and steadily, from 206 bones. How things work, how autonomy works, right? You're completely aware of, right? So it takes a time. It takes time. Yes, bro. Yes, bro. The infant need to grow complete adult human. It takes time. Same time will be applicable here to run your own business. Mark my word. Yes, yes. Go step by step. And if you are in hurry, then let's come to the point. Not actually. I'm not in a hurry. Actually, If you're not in from- a hurry, then sorry, bro. Be stable. From 2 years itself, I have wasted my time on. Actually, what's you your were saying age? like What's your age? 20, 25, 26 up to now. You know my age? No, bro. I'm 33 running. Yeah. Okay. And I'll give you a fine example. In 2013, my business was completely lost. I was bankrupt. Okay. And that time, before I being bankrupt, I took my spouse. With my spouse, I used to enjoy the pizza and Domino's pizza. And when I was enjoying that Domino's pizza, I used to tip waiters 100, 200 bucks. And I used to order pizza minimum 1500 to 3000 rupees. But when I went bankrupt, I went there, I asked that guy, do you have a job or a vacancy available? And without he seeing on my face, he said is yes. But when he saw me, he said, sir, are you joking? You are the one who orders pizza here and now you want to work here. Are you joking? I cannot believe your words. I said, I'm 100% certain. I want to. And then the manager took my interview. He offered me a job. I worked for 9,000 rupees. And that time was really struggling. I have to strive to earn for my bread and butter. A time came when gas was not available. However, we could only prepare food for a person. There were 3 more members in my family. My family were thinking that I was the one working, so the food should be offered to me. And I was thinking that my father, mother, and my spouse are more important. So I simply create an excuse saying that company is offering a meal because today new product has been launched, so there is no need for tiffin, so you keep it with yourself. Still my mother and father insisted me, and however I forgot that tiffin and I left home hungry. I was very hungry. By 2 o'clock I was so hungry that a couple who ate pizza and the leftovers were eaten by me. And that is the day I saw. So buddy, the moral of the story is never too late.
You said you wasted 2 years. I wasted my half life to coming to this point. दोस्तों फाइनली साई कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश को ये बात समझ में आई। कम्युनिकेशन गैप होने के बावजूद भी उस बंदे को ये क्लियर कट समझाने में MS ट्रेडर कामयाब रही कि आपको शुरुआत में ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करके अनुभव हासिल करना है, बेगर पैसे के अपनी क्षमता को एनहांस करना है और उसके बाद बेस लेवल के प्लास्टिक स्क्रैप के रिसाइकलिंग बिजनेस को करना है। एक बार उसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं तब जाके दाना या ग्रैनुअल रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करना है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट खतरा भी लाता है अगर आपके पास अनुभव नहीं हो तो। और इसी तरह MS ट्रेडर देश के युवकों के पीछे अपना वक्त लगाता है। देश के कुछ युवकों को 15 मिनट लगता है सारी चीज़ें समझने के लिए, कुछ को 2 घंटे लगते हैं और कुछ को 8-8 घंटे लगते हैं। फिर भी MS ट्रेडर अपना बेस्ट देता है, फी सबिलिल्लाह निःशुल्क अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देता है ताकि देश से बेरोजगारी दूर हो। और इस तरह साई कुमार को ग्रूम किया MS ट्रेडर ने कि सामने बैठा ब्लू शर्ट वाला चश्मा पहना हुआ व्यापारी साई कुमार को पहचान ही नहीं पाया कि वो नौसिखिया है या व्यापारी है, और उस बंदे ने अपना कार्ड दिया साई कुमार से बिजनेस करने के लिए। तो ये होती है MS ट्रेडर की ट्रेनिंग क्षमता। और फाइनली 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद साई कुमार को समझ में आया कि MS ट्रेडर के गाइडेंस ने उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है और उसने खान साहब के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिए और अपनी ज़िंदगी के कारवां को शुरू किया। व्यापारियों, आंध्र प्रदेश के साई कुमार कंफर्टेबल थे तेलुगु लैंग्वेज में और MS ट्रेडर के खान साहब कंफर्टेबल थे हिंदी लैंग्वेज में। अब ये जो लैंग्वेज बैरियर था, इस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ने के लिए हमने इंग्लिश का सहारा लिया। इसी के लिए आपको शुरुआत की जितनी भी साई कुमार के साथ हमारा वार्तालाप हुआ वो इंग्लिश में दिखा। पर यहाँ पे एक और व्यक्ति हमें पूना से मिलने आए। ये 2 जवान तरुण देश के, ये पूना से मिलने आए और इन्हें गाइडेंस चाहिए था, तो हमने इनसे कम्युनिकेशन हिंदी और मराठी में किया। तो इनका भी अनुभव देखें और आप अपने आप में निखार लाएं। न्यू जनरेशनला मी एकच मेसेज देईन, जवळ तुम्ही थांबलेत तवर तुमचे आई बाबा काम करणार। तुम्ही मैदानामध्ये उतरा, जे करायचे ते करा। नमस्कार, मी पंकज झोरंगे आणि हा माझा मित्र निशांत पाडाळे। आम्ही राहणारे येरोडा पुणे इथले। आमच्या दोघांचं शिक्षण ग्रॅज्युएशन झाले। आम्ही MNC मध्ये जॉब करत होतो अगोदर। 1 वर्ष आम्ही MNC मध्ये जॉब केला। त्यानंतर मग आता आम्ही स्वतःचा उद्योग स्टार्ट करायला सुरू केलं। तर आम्ही यूट्यूबवरती एक चॅनल बघितलं, मोनिश इब्ने आझम। त्यांचं स्क्रॅपबद्दल ते माहिती देत होते फ्री ऑफ कॉस्ट। तर आम्ही त्याला यूट्यूब थ्रू कॉन्टॅक्ट केलं। जे नंबर होता व्हॉट्सअपवर आम्ही त्यांना मेसेज केला। मेसेज करून मग त्यांनी आम्हाला खान साहेबांचा नंबर दिला। मग खान साहेबांना आम्ही फोन करून अपॉइंटमेंट मागितली। ती अपॉइंटमेंट आम्हाला 3-4 दिवसानंतर भेटली। तर आम्ही सकाळची ट्रेन पकडून बारामतीमध्ये आलो। फेस टू फेस आम्हाला माहिती पाहिजे होती। तर खान साहेबांनी आम्हाला म्हणजे नाश्ता वगैरेची सोय सगळी करून सगळं केलं आणि खान साहेबांनी फ्री ऑफ कॉस्ट माहिती पुरवली आम्हाला आणि सगळं सांगितलं की बिझनेस कसा करायचा, काटे टू काटा पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट, जो फ्रॉड होता तो पण सांगितला आणि परत त्या बिझनेसमधनं अजून वाढून तुम्ही दुसऱ्या लोकांना पण रोजगार देऊ शकता हे पण सांगितलं। डेट दिली होती सकाळी आणि आम्ही त्याच म्हणजे तयारीत होतो की कधी आणि तो माझा पार्टनर आहे निशांत। वय किती दोघांचं? 21 आहे, त्याचं 22 आणि त्याचं 21 आहे। म्हणजे वंड काय नंतर प्रण झाले तुम्ही कमी वयात उद्योग कमी करायचे? वयात उद्योग म्हणजे आम्ही काम करत होतो कॉर्पोरेट जॉबमध्ये। MNC ला होते? हो, MNC मध्ये होतो, B2B मध्ये। अच्छा, बिझनेस टू बिझनेस। पण तिथं मन नाही लागलं आमचं, नाही का, तिथं इज्जतच नव्हती आमच्या एम्प्लॉईजची की तू काम जरी नाही केलं की तुझ्या जागी आम्ही 10 जण उभे करू, असं होतं। आम्ही म्हटलं की स्वतःच सुरू करू। स्वतः सुरू केल्यावर आम्ही स्वतःच मालक केलं। ते बघ, कुठलाही उद्योग करायला महत्त्वाचं तुम्हाला ज्ञान गरजेचं आहे आणि सगळ्यात मोठं सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम जे तुम्हाला येईल दॅट इज योर फाइनेंस। फिर कंपनी के तरह, अरे भाई एरोड़ा में इधर आ जाओ ना भाई, टाइम दिया, आ गए भाई। अब चलो 2 कुर्सी लग गया, वो लोग बैठ कर अपना मजा ले रहे, बात कर रहे, चाय पी रहे। फिर उसी में कई दोस्त ऐसा बोलेंगे, अरे यार कैसे करता है, ये बोल देगा ठीक है मैं चाय बोल करता हूँ, दोस्त सपोर्ट करेंगे, ये उठा के उसमें डाल रहा, ये उठा के उसमें डाल रहा, आप इधर कर रहे, ये कर रहे, बटन दबा रहे। इसमें दोस्तों से टाइम पास करके अपना काम तुम करवा भी सकते, खाली नहीं बैठने का। दोस्त आया, ये नहीं कि ऑफिस में कुर्सी में बैठ जाओ, नहीं, करते रहो, उनको ट्रेनिंग देते रहो, वो भी कुछ न कुछ करते रहेंगे। अगर वो दोस्त है तो अगर वो बोला अरे यार क्या यार बंद कर यार, चल ऑफिस में बैठ, नहीं ये नहीं आउट। ऐसे लोग से दोस्ती करना नहीं है।
दोस्त वही है जो तुम्हारे काम में तुमको सपोर्ट करे, उसे दोस्त कहते हैं। ऐसे लोगों को अरे यार शुरू शुरू में तुम और दोनों काम करो बेटा, उसमें कुछ नहीं, सीधा मशीन में एक बार भर दो, बटन दबा दब गया, फिर वापस भर दो, बटन दबाया दब गया, 3 बार ऐसा करो, पेटी तैयार। ये नहीं मशीन पे एक आदमी खड़े रहो इधर, कुछ नहीं, जब बॉक्स जो भरता है तभी तुम बटन दबाओ, 3 बार में तुम्हारा हो जाता। तुम दोनों करो, हम आपको टेक्निक देंगे, कैसा शॉर्टिंग करने है, कैसा क्या करना है, कैसा क्वालिटी बनाया है, वाइट कलर बना लो, कलर बनाओ, सब अच्छे ढंग से इस हिसाब से करो यार। तो शुरुआती में सिर्फ 10 टन करो, किधर भी नहीं गया, 50 रुपया 50,000 और खर्चा कर डालो, 75,000 आराम से बेटा। अगर 5 लाख रुपया खर्चा कर दिए, सिर्फ 5 लाख, 2.5 लाख की मशीन, 2.5 लाख माल करते। इनके पास गए, पहले इनका नाम लिखो, इनका मोबाइल नंबर लिखो, वो एरिया का नाम लिखो। अच्छा, अब इनसे बोलो भाई तुम्हारे पास महीने का बॉटल कितना निकल जाता है, तो बोलेंगे 2 टन, फिर 2 टन लिख दो। अब दूसरे वाले को के पास जाओ, उधर लिखो। ऐसा सब कम से कम 15 टारगेट तुमको करना, 15-20 कबड्डी वाले। घर में आने के बाद पूरा काउंटिंग करो, 1.5 टन 2 टन 1.5 टन कितना हो गया, 25 टन। तो अब अंदाजा ये लगाओ 5 टन और छोड़ दो, 20 टन तुमको कबड्डी वाले से मिल रहा है। तो तुम कितना जमा कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी है ना भाई। मैं अभी कैसे बोले 6 टन, बोला नहीं बेटा 10 टन, तो तुम 10 टन जमा करो, 20 और 10 तुम्हारा 30 टन हो गया। कोशिश करो और काम बढ़ाओ और आगे भागो, ये टारगेट से करोगे बेटा ना, 30, 40, 50 टन। अब क्वालिटी गंदा ज़्यादा नहीं, अच्छा क्वालिटी बनाओ, हाँ वो बनाओ, इतना तुम्हारी क्वालिटी बोलती। जेवढे भंगारवाले कबाडवाले तुमच्या शेजार बाजारचे जेवढे भंगारवाले आणि कबाडवाले आहेत ना, त्यांच्याकडं स्वतः फॉलोअप घ्यायचा, त्या भंगारवाल्याकडे नाही जायचं। असं थोडक्यात नाही, त्यांच्याकडे जायचंच नाही। तुला मी उत्कृष्ट उदाहरण देतो, समजलं हो तुझा एरिया समोरचा, आता या एरियाचा नगरसेवक कोण आहे तुला माहिती आहे, पण नगरसेवककडे डायरेक्ट तुझी ओळख नाही, तर तू काय करणार, त्याचा गोटा कोण आहे, राईट हँड कोण आहे ना, राईट हँडचा राईट हँड कोण आहे, हां अरे पक्या भाऊ तुमचं नाव भरपूर ऐकलं काय चाललं, चला बसू, तर तू त्याच्याकडनं ओळख करणार, तो तुला एखाद्या मीटिंगमध्ये नेईल, तो तुला त्या मीटिंगमध्ये नेणार, त्या मीटिंगनंतर तू त्या कॉर्पोरेटरकडे बसणार, बरोबर आहे, लिंक लावणार। तशी कशी लिंक लावतो, तशीच हा इथं तुला भंगारवाल्याकडे लिंक लावायचं। तू ज्या दिवशी कंपनी उघडतो ना, त्याच्या 2 आठवड्यापासून हे स्टार्ट करायचं। काय स्टार्ट करायचं, त्या भंगारवाल्याकडे जेवढे फेरीवाले असतात, फेरीवाले म्हणजे कचरा उचलून डंप करणारे, समजलं, त्या फेरीवाल्याकडं, त्या प्रत्येक भंगारवाल्याकडं किंवा त्यांच्या इलाक्यामध्ये तिथे चहाची टपरी असते, प्रत्येक चहाच्या टपरीवर व चहाच्या टपरीकडे ना त्या भंगारवाले म्हणजे फेरीवाले बसतात, गाडीवाले बसतात, गाडीवाले म्हणजे कुठे छोटे हाती आणि हे सगळे बसतात। चहा पिता पिताने त्यांची ओळख करायची, क्या भई कैसे, मुसलमान राहतो सलाम, आपला दलित भाई राहतो जय भीम, मराठा राहतो नमस्कार को चमत्कार, आपण उस तरह बात करो, त्याच्याबरोबर तसं बोला। हे बघ कसं असते माहिती का, पर्सनल टच आहे ना, हे माणूसला जवळ घेते। तुला माहिती आहे, तुम्ही तुझ्या माहितीसाठी मला दिवसाला 300-400 कॉल येतात, भरपूर नॉन मुस्लिम्स आहेत, ते मला सलाम अलीम भाई म्हणतात, तर त्यांना असं वाटतं की त्यांनी सलाम केलं म्हणजे एक पर्सनल कनेक्शन होईल। हां एखादं मला कुठं काम असलं, मी एखादा शासकीय कार्यालयामध्ये गेलो, तिथं काम आहे, मला माहिती आहे तो बुद्धिस्ट होतं, जय भीम साहेब जय भीम, तर पर्सनल टच दिलं ना, मी का दिलं, पर्सनल बॉन्डिंग बिल्ड व्हायला पाहिजे। तर असं त्या बॉन्डिंग तुम्ही बिल्ड करा। बिल्ड करायचं कारण काय, त्यांचा नंबर तुमच्याकडे आला, तुम्ही त्याच्या टचमध्ये राहिले, ज्या दिवशी तुमचं उद्घाटन आहे सगळ्यांना आमंत्रण करायचं, सगळ्यांना, जेवढे कचरा बिनणार आहेत, जेवढे रॅक पिकर आहेत, सगळ्यांना आमंत्रण द्या, त्यांना जेवणला बसवा, ताटला पंगतला बसवा, बस या इज्जत द्या। त्या लोकांना इज्जत कोण देतात, आई ना सुकलाची बैठो साहेब बैठो, सगळं झालं, जेवण झालं, त्यानंतर मीटिंग घ्यायचं। आप मार्केट में 20 रुपये में पेट बॉटल गिराते हो, किसको, ये भंगार वाले को, वो भंगार वाले को, बराबर है। ये 2 बच्चे जो पुणे से आए थे, इन्हें भी हमने मार्गदर्शन दिया, इन्हें बहुत अच्छे से ग्रूम किया, और अब ये अनकरीब अपने प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। पर जब मैं और खान साहब इन पुणे के 2 युवकों को
ट्रेन कर रहे थे, तब नईम शेख जो एमएस ट्रेडर के लिए काम करते हैं उनको भेजा था हमने केरला, ताकि केरला में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ग्रूम कर सके कि किस तरह प्लास्टिक स्क्रैप को सेग्रीगेट किया जाता है और किस तरह वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए नईम की फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। एमएलपी में दो टाइप है, एक सिल्वर और एक प्लेन। तो आप प्लेन अलग कीजिए, सिल्वर अलग कीजिए, ठीक है। इसको क्या होता है कि बायर प्लेन लेने वाले अलग होते हैं, सिल्वर लेने वाले अलग होते हैं। दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हारा जो मार्जिन है, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, या वो तुम्हारी जो क्वांटिटी जाना चाहिए वो कभी कभी नहीं जाती। तो बेटर वे है कि आप प्लेन अलग करो, सिल्वर अलग करो। ये दो टाइप से अलग कर लिया आपने। ये सब आप प्लेन में डालोगे, ठीक। ये है, ये सिल्वर में डालोगे। एमएलपी तो है लेकिन इसका जो कोटिंग है पीछे का वो सिल्वर है, तो इसको आप सिल्वर में जमा करो। ये सेग्रीगेट करो आप। एलडी कहाँ रखे आपने? आ जाइए जुनेद भाई। जस्ट अ मिनट दादा, जस्ट अ मिनट। जैसा ये आपकी पेट बॉटल्स है, आप इसको सेग्रीगेट कर ही रहे हो, ठीक है। बाद में तो बेटर है कि इस सेग्रीगेट जब कर रहे हो तो ये इसका स्टिकर, इसका लेबलिंग निकाल दो और इसको डालिए एमएलपी में, ठीक है। इससे आपका वैल्यूम भी बढ़ गया और आपका क्वालिटी भी अच्छी बन गई। उसके बाद ये रिंग होता है पीपी का, इसको आप पीपी में निकाल लीजिए, हार्ड प्लास्टिक में। सेम इसी में इसका ढक्कन भी निकाल लीजिए, ये भी पीपी में आता है। ये अलग निकाले। एक कटर रखने का अपने पास, ये रिंग अलग कर दिए, लेबलिंग अलग कर दिए। ये लेबलिंग उठा के पीपी में इसमें डाल दीजिए, सॉरी एमएलपी में डाल दीजिए। इसको कट कर लेना। तो ये जो आपका क्वालिटी बन गया, ये कभी भी बेटर रहता है, ना कि ये। इसमें व्हाइट अलग, कलर अलग, लेकिन दोनों में स्टिकर और ये जो रिंग है पीपी का, इसको सेपरेट कर लेना, ठीक। ये फॉइल अलग जमा कीजिए आप, ठीक है। और यूवीएस कैन आता होगा इसमें, जो अपने बियर वगैरह का कैन देखे होंगे, एल्यूमिनियम कैन आता है, ठीक है। उसको सेपरेट कर लेना, उसको इसमें मत मिलाइएगा। यूवीएस कैन अलग कीजिएगा, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें तो आपको सिंपल है, आप कर ही रहे हो। कार्डबोर्ड ऐसा ऐसा अलग अलग करना है। हाँ, अलग करना। व्हाइट पेपर और ऑडवेस पेपर और सब अलग करना। दिस इज एलडी, हाँ ठीक। इसमें ये बेटर क्वालिटी है, ये टोटल माल अलग कीजिएगा। और हो सके तो एलडी में जिसका थिकनेस ज्यादा है, जैसा अभी आप इसको पकड़ के देखिए, इसका थिकनेस बेटर है, तो ये माल अलग रखिएगा। और अगर इससे कम थिकनेस का रहता है तो वो अलग करना। ये कब आपके पास वैल्यूम जमा हो रहा है तो, नहीं तो इसको एक साथ रखिए, कोई इशू नहीं। इसमें स्टिकर निकाल लीजिएगा, ये याद से करिएगा। जब भी आप सेग्रीगेट करते हो तो ये जो स्टिकर होते हैं ये आप अलग कीजिएगा। इससे आपका माल सेलिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टिकर आ गया तो उसका प्राइस डाउन हो जाता है, सामने वाला बायर नहीं ले सकता। बेटर है इसको अलग कीजिएगा। और एलडी में अगर से कलर एलडी है तो कलर एलडी अलग कीजिएगा और व्हाइट अलग कीजिएगा। और एमएलपी कहाँ रखे आपने? एमएलपी बाहर। अच्छा, ये सेग्रीगेट किया हुआ है, ये आने मत देना कभी भी, ठीक है। ये चीजें आपके माल को नुकसान पहुंचाएंगा। जैसा मैंने बताया ये सिल्वर इसमें भी है, इसको सेपरेट करना है इसके बाद। और ये प्लेन है, इसको अलग कीजिएगा।
और आपके पास क्या क्या आता है, जैसे ये कैन बोला दिस वन, इसको अलग करना और इसको भी बेल कीजिएगा, ठीक है। ये एल्यूमिनियम में जाएगा। अभी इसको आप मिक्स रख रहे हो कि कैसा कर रहे हो? वो बाद में किया है ना, वो उसको मालूम है, ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स दे ऑलरेडी नो। पेट बोतल सारी एक कीजिएगा, और आपके इधर शायद बियर बॉटल्स भी आता है प्लास्टिक का, लिक्वर बोतल, लिकर दारू का बोतल ऐसा ही सेम है ना, दारू का ये दिस वन, हाँ ऐसा। इसको अलग कीजिएगा, ठीक है। ये पेट बॉटल में मिक्स मत करना। इसका भी ऊपर का जो रिंग है ये निकाल लीजिएगा, और ऐसे का ऐसा ही इसको बेल करने का, ये आपको बेटर रहेगा। दोस्तों देखा आपने किस तरह एमएस ट्रेडर के लिए काम करने वाले नईम शेख ने सदर्न इंडिया में यानी कि साउथ इंडिया केरला स्टेट में जाके वहां के वेस्ट मैनेजमेंट चलाने वाले टीम को ग्रूम किया और निशुल्क फी सबिलिल्लाह जानकारी दी, ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर कर सकें और देश में रोजगार बढ़ सके। इसी के साथ साथ एमएस ट्रेडर के खान साहब का ये गोल और ये लक्ष्य है। खान साहब का ये कहना है कि अगर देश से बेरोजगारी को भगाना तो बिजनेस को, उद्योग को दिल से अपनाना। और अगर आप प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो और आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप टाइमिंग अनुसार छुट्टी का दिन छोड़ के हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको जानकारी फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं प्लास्टिक स्क्रैप की। पर यह बात भी ध्यान रखें, हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिजनेस फ्री में नहीं करते। और अगर आप हमारे साथ प्लास्टिक स्क्रैप का व्यवहार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो। जहां पे आपको जगह मिले वहां पे आप जाके ज्वाइन हो जाए। मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आपको वीडियो के माध्यम के जरिए जानकारी मिलती है और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आप अपने सलाह को, अपनी शिकायत को, अपनी तारीफ को, यानी कि आप सजेशन देना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स को खुला रखा है। दिल खोल के लिखिए दोस्तों, चाहे वो तारीफ हो या गाली, हम अल्लाह की रजा के लिए सब पढ़ते हैं। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से जुड़ेगा परिवार, और जब जुड़ेगा परिवार तभी तो बढ़ेगा परिवार। तो मेरे देशवासियों, आप हमसे जुड़िए। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।